Hello friend, in this video I am going to solve Polytechnic paper for Physics 2 and already Physics 1 is uploaded. Here I will discuss only paper 2 and paper 2 also contains two parts. Part 1 is General Studies question 1 to 25 which is I am not going to discuss, and part 2 is Physics 2 which is question number 26 to question number 125. Okay, let's start guys. Quantum operator for energy is, option C is correct, IH cut del over del T. Question 27, the energy function phi n and the corresponding आइगन वैल्यूज अल्फा एन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रिलेटेड बाय. तो यहाँ पर जो फाई एन और यहाँ पर साई एन का डिफरेंस है, दैट्स वाई आई एम पुटिंग इन इट इन द ग्रे लिस्ट. सिंबल आर नॉट द सेम, अदरवाइज आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता. क्वेश्चन 28, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 1. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 29, अ जीनर डायोड इज सुटेबल फॉर. तो जीनर डायोड इज सुटेबल फॉर वोल्टेज रेगुलेशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. Question 30, the quantum mechanical operator for the momentum of a particle moving in one dimension is given by. It is given by minus I h cut del over del x. Option B is correct. Question 31, the cut in voltage for germanium diode is nearly. तो cut in voltage is different from cut off voltage. तो cut in मतलब just where it started, then इट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर 0.3. तो जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 होता है एंड सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है कट इन वोल्टेज. ओके, एंड कट ऑफ इज डिफरेंट. तो कट ऑफ वोल्टेज आपका 0.7 एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो हियर इट इज आस्किंग अबाउट द कट इन. तो 0.3 वोल्ट इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 32, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इज गिवन बाय. So dipole moment is given by NIA. Option A is correct here. Question 33, the internal resistance of an ideal constant voltage source is 0. The internal resistance of an ideal voltage source is 0. It is able to supply or absorb any amount of current. So option A is correct here. Question 34, a 10 gram marble is in a box 10 centimeter across. Find its permitted energy. So use the formula for 1D box. So n square pi square h cut square divided by 2 ml square. Put the values and you will find that your option B is correct. 5.5 into 10 to the power minus 64 n square joule. Question 35, the kinetic energy of an electron in an atom is. Kinetic energy is half of the potential energy and that's why it is bound with the atom. Question 36, which of the following is not the basic logic gate? So R, not and N are the basic logic gates. Question 37, the ground state spectroscopic term for chlorine 17 atom is. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Last electron is going in p. So just write L is equal to, for p L is equal to 1, S is equal to half because one unpaired electron is there. And whenever electron are filled more than half, in that condition you have to take your total angular momentum J value equal to L plus S. When it is less than half filled, in that condition you have to take L minus S. Here it is more than half filled, so I am taking J equal to L plus S here, to 3 by 2. Ground state spectroscopic term for chlorine equal to 2p 3 by 2. Option C is correct here. Question 38, when negative current feedback is used in an amplifier, the output impedance increases. Question 39, which of the following cannot be consequence of negative feedback in amplifier? Negative feedback in amplifiers causes reduce the distortion and noise in the amplifier, but यहाँ पे increase वाला option दिया है, that's why it is incorrect here. Question 40, the force on an electron moving with velocity v equal to 2.5 into 10 to the power 6 meter per second in magnetic field B equal to 10I minus 6k into 10 to the power 2 Weber per meter square is. तो just solve कीजिए, you will find out that your option B is correct. 2.4 into 10 to the power minus 10. Use the formula QVB. Question 41, match the following and choose the correct answer from the code. So power related to watt, magnetic field Tesla, magnetic flux Weber and inductance Henry. So option B is correct. Question 42, according to Moseley's law, frequency of K alpha line will be. तो उन्होंने क्या किया था, जस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर लेकर के मॉडिफाई कर दिया था आपका जो बोहर्स का मॉडल था. इट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड फॉर अल्फा रेडिएशन योर इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम n इक्वल टू 2 to
n इक्वल टू 1 के सेल में जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर n इक्वल टू 2 रख दीजिए। 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो 3/4 का जो फैक्टर आएगा तो इट इज आस्किंग फॉर द सेम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 43, एनर्जी लेवल्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m confined in one dimensional box of length 2a इज। तो जो फार्मूला आपका होता है वो होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, डायमेंशन का स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो डायमेंशन यहाँ पर क्या दे दिया है, 2a दे दिया है, तो जस्ट 2a का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8ma स्क्वायर। ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 44, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो हियर योर बोहर मॉडल and Sommerfeld model, these are for the atomic electron distribution models, and your liquid drop model, it can explain only the fission, you explain nuclear fission for light elements. Now तो remaining option is C, तो I am just putting C as a correct option. It also show about the stability, जो आपका magic numbers हुआ, stability हुआ, stability of the nucleus, and I am also putting this question in gray list, just cross check from your side. Question 45, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉल्स इन द रीजन। तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो कहाँ पर होता है, मिड इंफ्रारेड रीजन में होता है। द मिड इंफ्रारेड अप्रोक्सीमेटली 4000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होते हैं। और जो नियर इंफ्रारेड में आता है हमारा, उसमें क्या होता है, ओवरटोन और कॉम्बिनेशन मोड्स। ओवरटोन मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन रहेगा डबल ट्रिपल फोर्थ ऑफ द फंडामेंटल मोड्स, और जो फार इंफ्रारेड रीजन होता है उसमें आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई एम आल्सो पुटिंग दिस क्वेश्चन इन ग्रे लिस्ट, जस्ट क्रॉस चेक फ्रॉम योर साइड। Question 46, the number of turns in primary and secondary coils of an ideal transformer are 200 and 100 respectively. If this transformer is used in a half wave rectifier and the peak value of AC voltage applied across the primary coil is 314 volt, then DC voltage produced by half wave rectifier will be, just use the formula NP by NS equal to VP divided by VS। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपका यूज किया गया है। तो आपका जो सेकेंडरी में आपका जो वोल्टेज हो रहा कितना होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 157 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ऑफ द VS। तो DC आउटपुट क्या होता है, V max डिवाइड बाई पाई, 70.7 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, 70 वोल्ट। क्वेश्चन 47, Davison-Germer experiment gives the proof of wave nature of electron. Question 48, when gamma rays fall on heavy substance, electron and positron are produced. The phenomena is known as pair production, and 1.02 mega electron volt minimum energy is required for this. Question 49, the difference of wavelength between D1 and D2 lines of sodium spectra is, so it is 6 angstrom. Option C is correct here. Question 50, the mass of photon इन मोशन इज, क्वेश्चन निकाल लेंगे, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 51, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो जस्ट यूज द फार्मूला En इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। इन दैट वे you can calculate, and option C is correct here. Question 52, find the expectation value of position of a particle whose normalized wave function is psi x equal to ne raised to power minus x square by 2a square plus I kx। पर्टिकुलर दिस फॉर्म में लिखेंगे तो जो साई स्टार साई, तो यहाँ से ये टर्म हट जाएगा क्योंकि प्लस आई के एक्स माइनस आई के एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टर्म बचेगा आपका, टाइप का टर्म बचेगा। और लेकिन जो आपका पोजीशन है, यहाँ पोजीशन क्या रहेगा, x लिखेंगे, इट्स गोइंग टू बी एन ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इट इज गोइंग टू गिव अ जीरो वैल्यू, जो वैल्यू आने वाली है वो जीरो रहेगा। क्वेश्चन 53, इन केस ऑफ अ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, तो ऑप्शन से इज करेक्ट, m इक्वल टू k स्क्वायर रूट L1 L2। 54, Cooper pair has electrons of, it has equal and opposite momentum, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इक्वल एंड अपोजिट स्पिन्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन 55, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अ क्वांटम स्टेट विथ इनफाइनाइट लाइफ टाइम
implies that the state has। पहले तो इनफाइनाइट लाइफ टाइम पॉसिबल होता नहीं है, अगर आप होता है तो फिर डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच कट कर देंगे, तो यहाँ पर डेल्टा टी इधर आकर इन्फिनिटी से जब डिवाइड कर देंगे तो जीरो आएगा, तो आपको जो विड्थ है वो आपका नेग्लिजिबल या जीरो हो गया। तो एक ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि फाइनाइट एनर्जी विथ नेग्लिजिबल विड्थ, बट आई एम आल्सो कंफ्यूज बिटवीन ए एंड सी, पुटिंग इन ग्रे लिस्ट, जस्ट क्रॉस चेक फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन 56, LED मेड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड इमिट्स रेडिएशन इज। तो जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसका जो बैंड गैप है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स अराउंड 870 नैनोमीटर विच इज इन इंफ्रारेड रीजन। तो अगर हम जस्ट गैलियम आर्सेनाइड लेंगे तो हमारा कहाँ पर इमिट करेगा, इंफ्रारेड रीजन में इमिट करेगा। बट अगर इसमें फास्फोरस की डोपिंग कर देंगे, शिफ्टिंग द एमिशन इन विजिबल रेंज बाय फास्फोरस डोपिंग। क्वेश्चन 57, करेक्ट रिलेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज। ए होता है RH इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉल इफेक्ट एंड डिवाइड बाय करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो RH इक्वल टू माइनस EH बाई BJX, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन यूनिवर्सल फॉर्म। तो ये आपका इस तरह से बहुत सारा जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन मैक्सवेल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जस्ट इसको आप याद कर लो। जो चारों इक्वेशंस है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, डेल डॉट E इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, डेल डॉट B इक्वल टू जीरो। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है, डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल टी। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, डेल क्रॉस B इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E ओवर डेल टी या 1/c स्क्वायर डेल ओवर डेल टी। तो ये चार इक्वेशन से बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ के लिए क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कर्ल E डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 59, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 56 Fe, आयरन के लिए ज्यादा होता है। क्वेश्चन 60, इफ अ पार्टिकल हैज वेव फंक्शन psi इक्वल टू ax बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू x आर द पार्टिकल पोजिशन। ये पूछ रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा आपका, जस्ट सॉल्व इट। a स्क्वायर बाई 4 इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 61, द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर a एंड b इज डिफाइंड एज। तो इट इज डिफाइंड एज कम्यूटेटर ऑफ a एंड b इक्वल टू ab माइनस ba। क्वेश्चन 62, द आइसोस्पिन इज कंजर्व्ड इन strong interactions only, option D is correct here. Question 63, the maximum kinetic energy of the ion emerging from the cyclotron is। तो जो maximum kinetic energy रहेगा, तो आप पहले maximum के लिए निकाल लीजिए, QVV इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर नॉट, इसको मैक्स कर दीजिए सबको। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, mv नॉट स्क्वायर बाई 2, v की वैल्यू रख दीजिए, तो b स्क्वायर q स्क्वायर r square by 2m, option C is correct here. Question 64, a circular coil of radius r carries a current and the magnetic field at its center is B. At what distance from the center on the axis of coil the magnetic field will be B by 8। तो B का फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। आप इसको यूज करते हुए निकाल लेंगे। सेंटर पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे आपका म्यू नॉट आई बाई 2r एंड जस्ट स्क्वायर रूट 3r पुट करने पर आप देखेंगे कि जो आपका वैल्यू आ रहा है b बाई 8 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 65, द मैजिक नंबर शोविंग ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आर। तो मैजिक नंबर्स, द 7 मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मैजिक नंबर्स आर 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Question 66, the de Broglie wavelength of an electron accelerated to a potential difference of v volt is। का de Broglie wavelength होगा, ये आपका h अपॉन स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, तो 1.227 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट v नैनोमीटर आएगा। और इसको या तो फिर स्क्वायर रूट में रखना चाहते हैं तो 150 डिवाइड बाई v एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 67, द करंट थ्रू अ पीएन जंक्शन इज गिवन बाय। जो करंट आपका होगा ID, मतलब जो डायोड करंट होता है, डायोड करंट इक्वल टू IS सैचुरेशन करंट ब्रैकेट में e रेज़ टू पावर QVD डिवाइड बाई ईटा KT माइनस 1 होगा। यहाँ पर जो एक पहले तो मिसिंग टर्म है ईटा, ईटा इज योर आइडियलिटी फैक्टर। तो आइडियलिटी फैक्टर ये आपका मिसिंग टर्म है इस इक्वेशन में, तो इसलिए मैं इसको ग्रे लिस्ट में रखता हूँ एंड सही से मेंशन नहीं है, तो जस्ट सी ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है, अदरवाइज इट इज इन ग्रे लिस्ट। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। a डॉट a बार इक्वल टू 0 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 दिया है इसलिए यह गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 69, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द बैंड गैप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इज अप्रोक्सीमेटली।
ये पहले भी आपका दे चुका है क्वेश्चन इधर, तो जस्ट वही है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फैराडेज लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B एच। फिर से मैक्सवेल्स का क्वेश्चन दे दिया है, आपका वही बात है, फैराडेज लॉज है। तो डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो यहाँ पर DDT दिया हुआ है, BDS दिया हुआ है, तो आपका पर्टिकुलर यही ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 71, द टोटल इंडक्शन ऑफ two coupled coils in positive coupling and negative coupling are 1.6 millihenry and 0.8 millihenry respectively. The value of mutual inductance will be. तो एक में आपका क्या है, L1 plus L2 plus 2m पॉजिटिव कपलिंग, नेगेटिव कपलिंग में क्या जाएगा L1 plus L2 minus 2m। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या है, इनको वैल्यू दिया हुआ है 1.6 और 0.8, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1.6 माइनस 0.8 डिवाइड बाई, यहाँ से आपका 4m रहेगा ना, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.2 मिली हेनरी इज द आंसर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज परमिटेड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर बेरियन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है, तो यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप। नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट। तो यहाँ से क्या, नॉर इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 74, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ एक्स रे डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एक्स रेज। तो इट जो शॉर्ट वेवलेंथ इमिट कब होगा, जितना जितना वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना आपका शॉर्ट वेवलेंथ कि जो रेडिएशंस होंगे वो आपका इमिट होंगे। एंड आई एम आल्सो पुटिंग दिस क्वेश्चन इन ग्रे लिस्ट बिकॉज वेवलेंथ आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द टारगेट। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो आपका बी भी सही होना चाहिए और ए पर भी आपका एक डिपेंड करेगा, लेकिन अब चूंकि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बोल रहा है तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट के शॉर्ट वेवलेंथ की बात कर रहा होगा। एंड क्वेश्चन 75, स्वीप वोल्टेज यूज्ड इन CRO इज ऑफ टाइप sawtooth wave. Question 76, which of the following can produce magnetic field? तो time varying electric field can produce the magnetic field. Question 77, the existence of discrete energy levels in Hg atoms are established by Frank Hertz experiment. Question 78, a spin of boson is equal to positive integers. Option A is correct here. Question 79, an electron is injected into a region of magnetic flux density with components of velocity parallel to and normal to the flux. The path of the electron is, it is helix. Option A is correct. Question 80, in a waveguide which condition will always hold good? जो phase velocity होता है it is greater than c. In a waveguide the phase velocity is greater than the velocity of light, हमेशा होता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, group wavelength will be greater than the wavelength at any point। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है। Question 81, if 50 kilovolt is applied in an X-ray tube, the minimum wavelength for X-ray will be। तो just solve it, SC by lambda करके सॉल्व कीजिए। SC by lambda इक्वल टू EV, तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो आपका आएगा 0.2 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 82, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ फिर से एम्पियर लॉ पे आ गए हैं। तो जो पर्टिकुलर ये टर्म होता है एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, इसको ही JD बोल रहा है यहाँ पर, तो ये आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 83, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, H डिवाइड बाई m0c 1 माइनस cos 5। क्वेश्चन 84, if a charge q is placed at a center of a cubical box, the value of total flux that is coming out will be। तो जितने भी चार्ज होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एक टोटल फ्लक्स आपका होता है, तो आपकी जो ऑप्शन ए होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 85, एट लो टेम्परेचर द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स वेरीज एज। तो एट लो टेम्परेचर इट इज ऑलवेज वेरीज एज T⁻³ और एक क्वेश्चन पिछले 3-4 एग्जाम जितने हुए हैं सभी में पूछ रहा है रिपीट करके। क्वेश्चन 86, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो मैटर वेव इट इज डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ब्रैग्स लॉ एक्सरेज एंड अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हियर। क्वेश्चन 87, द Clausius-Mosotty relation holds best for gases and dilute solutions. Option C is correct. Question 88, 0 point energy is consequence of energy at temperature 0 degree Kelvin or absolute temperature. Question 89, the mean value of position x for an electron in the ground state of hydrogen atom is। So it is 3/2 A0. Question 90, the half life of a radioactive element depends on। तो ये टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा और अमाउंट ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड भी नहीं करेगा, एक टाइप ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें कोई भी नहीं दिया था ऑप्शन, तो दैट वाई ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन 91 द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर से मैक्सवेल्स इक्वेशंस आ गए। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 92 फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वी यूज द फोटो डायोड इन रिवर्स बायस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 93 सेलेक्ट रूल्स फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम आर, तो आपका जो डेल्टा जे होगा वो 0 ± 2 होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 94 बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय EH कट बाय 2m H कट इक्वल टू H बाई 2 पाई, वैल्यू रखने पर आपका आ जाएगा EH बाई 4 पाई m, म्यू बी इक्वल टू EH बाई 4 पाई m, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 95 इन अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 96 फॉर अ 1 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड if n equal to 500 and I equal to 5 ampere then calculate B at its center। जो नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ कितना है 500, आपका 1 मीटर है इसलिए यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा 500, करंट 5 एम्पियर, तो आपका जो जस्ट यूज द फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला आएगा। टेस्ला और वेबर पर मीटर बोथ आर द सेम यूनिट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 97 The elementary particles responsible for holding nucleons together within atomic nuclei are, so particles called meson are responsible for keeping the nucleons together, although gluons are responsible for keeping the quarks inside the nucleons together। ठीक है, जो स्ट्रांग फोर्स होता है उसका जो एक्सचेंज होता है वो ग्लूऑन्स के थ्रू होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियंस की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियंस के लिए जो मेसॉन्स है, मेसॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, सी इज करेक्ट हियर। 98 एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग, तो एन टाइप के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप्ड करना पड़ेगा लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। पी टाइप में क्या करना पड़ता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग करना पड़ता है, बोरान, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। तो एन टाइप के लिए आर्सेनिक यहाँ पर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए आपका फर्स्ट ए भी करेक्ट है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, दिस इज जस्ट एम्पियर्स लॉ है विदाउट मॉडिफाइड। इफ आपका जो टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ अभी तक सही था। डेल डॉट बी ए भी 0 है, ए भी सही है। अब ऑप्शन डी डेल डॉट बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट इन स्पेस सो इट्स डाइवर्जेंस मस्ट बी 0 एवरीवेयर, तो डेल डॉट बी इक्वल टू मस्ट बी 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 100 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट एग्जिट, तो आपका प्रोटॉन्स नहीं निकालते हैं, एग्जिट नहीं करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 101 ऑन इंसर्टिंग अ प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स और a parallel plate condenser the stored energy is increased by 3 times, जो एनर्जी है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। the dielectric constant of the material is, तो k की वैल्यू पूछ रहे हैं, k क्या होगा, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 CV², तो जो c हो रहा है एनर्जी 3 टाइम्स बढ़ रही है, इसका मतलब कि आपका जो c है वो 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है। 3 टाइम्स बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये रहा होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 3 टाइम्स बढ़ गया मतलब 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पल्स, तो मल्टी वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पल्सेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 103 विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोफेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज्ड एज ए टेम्परेचर सेंसर, तो कायरल न्यूमेटिक कैन बी यूज्ड एज ए टेम्परेचर सेंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 104 एवलांच इफेक्ट ऑकर्स इन अ पीएन जंक्शन यूजुअली व्हेन, तो देखिए आपका 2 होता है, एक तो होता है आपका जिनर किस में होता है, जो हैवीली डोप्ड पीएन साइड होते हैं वो उसमें आपका होता है जिनर ब्रेकडाउन, ओके। और जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है किस में होता है, जो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शंस होते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन्स ऑकर्स इन अ पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज लाइटली डोप्ड एंड हैज, अगर लाइटली डोप्ड रहेगा तो क्या होगा, जो जंक्शन रहेगा थिक जंक्शन रहेगा, तो डिप्लेशन लेयर इज थिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 105 fermions with half spin and non-zero mass are called quarks, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 106 द आउटपुट ऑफ अ NOR गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, आर गेट के लिए क्या होता है, a प्लस बी होता है, इसका नेगेटिव ले लीजिए तो NOR हो जाएगा, a बार डॉट b बार, ऑप्शन B is correct. Question 107 if D, E and P are electric displacement, electric field intensity and polarization vectors respectively, then their correct relation is, तो repeat question है GDC का, तो option D is correct here, D equal to epsilon naught E plus P. Question 108 for angular momentum operator value of commutator J plus and J minus is, option B is correct here.
2H कट JZ, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ कम्यूटेटर ऑफ J प्लस एंड J माइनस 2H कट JZ। क्वेश्चन 109, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज, फिर से मैक्सवेल्स के पास पहुंच गए हैं, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ यूज कीजिए, तो आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी है। पर्टिकुलर जो दिस टर्म है इस टर्म की बात कर रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 110, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जस्ट एक्स का ही मैं मीन वैल्यू मान के चल रहा हूं, तो 3a0/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 111, कैलकुलेट लैंडे जी फैक्टर फॉर स्टेट 2p3/2, तो लैंडे जी फैक्टर निकालिए, तो आपका जो स्पेक्ट्रल टर्म ए होता है 2s + 1 LJ, L इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, L इक्वल टू P के लिए 1 हो जाएगा, S के लिए यहाँ पर 2s + 1 से निकालेंगे तो S हाफ आ जाएगा, J आपका 3/2 दिया हुआ है। फाइनली जब फॉर्मूला पुट करेंगे 4/3 आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 112, इन न्यूक्लियर रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ, तो पर्टिकुलर यहाँ पर एक कंजर्वेशन बोलना चाह रहे थे, तो कंजर्वेशन मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, मास क्या होता है कन्वर्ज करके एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो मास का कन्वर्जन होता है। अगर कन्वर्जन ही बस है यहाँ पर, तो फॉर पर्टिकुलर दिस वन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट हियर, यू कैन क्रॉस चेक इट फ्रॉम योर साइड एज वेल। क्वेश्चन 113, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट वेव फंक्शन ए एंड अल्फा आर कांस्टेंट, ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन से बहुत बार पूछा हुआ है, जीडीसी में भी पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन डी देखिए क्या है आपका, जो ये पॉजिटिव टर्म्स दे दिया हुआ है, तो जो आपका पर्टिकुलर वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइटनेस शो करना चाहिए। इफ आई एम पुटिंग हियर इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा e⁻∞, तो टोटल जो वेव फंक्शन क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, फाइनाइटनेस नहीं है यहाँ पर। दैट्स वाई ऑप्शन डी जो दे रहा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एनी appropriate wave function, option D is correct. Question 114, which of the following is correct, तो ऑप्शन C is correct here, L² Lx इक्वल टू 0, तो यहाँ से देख सकते हैं L² Lx जो भी है 0 हो जाएगा, Lz Z ये भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन C is correct और बाकी सब गलत हैं। 115, 1 dB correspond to change in power level by 26%. Question 116, द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज, पॉइंटिंग वेक्टर का जो पॉइंटिंग वेक्टर डिस्क्राइब्स अ पावर पर यूनिट एरिया एंड देयरफॉर इट्स यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 117, द डोमिनेंट TE मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज, TE10 is your dominant mode in rectangular waveguide. Question 118, a transistor having alpha is equal to 0.975 and negligible reverse saturation current is operated in common emitter configuration. If IB equal to 250 माइक्रोएम्पियर, IC will be, IC की वैल्यू पूछ रहा हुआ है, यहाँ से रख सकते हैं IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू IB, तो 9.75 मिली एम्पियर आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 119, द परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.74, द मटेरियल इज, तो ये परमिबिलिटी जो दे रहा है यहाँ पर भी रिलेटिव परमिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो जो रिलेटिव परमिबिलिटी μ/μ0 होता है और जो ससेप्टिबिलिटी होता है μr-1, तो अगर ये लेस देन 1 है तो इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, जो आपका ससेप्टिबिलिटी रहेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और ससेप्टिबिलिटी जब नेगेटिव होता है तो आपका मटेरियल क्या होता है, डायमैग्नेटिक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 120, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू अ स्मॉल एरिया ds इज गिवन बाय E.ds, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 121, द वैल्यू ऑफ 1/r इन द psi 100 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है 1/r के जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा क्या होगा, 1/r का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है 1/n² A0, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो आपका 1/A0, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 122, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सफिशिएंट फॉर क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन गैलियम आर्सेनाइड इज इक्वल टू 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो जो बैंड गैप के इक्विवेलेंट जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा वही आएगा, तो जस्ट h न्यू इक्वल टू 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लीजिए, यहाँ से न्यू की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपका 3.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 123, ओके गाइज, तो 26 मार्च को एग्जाम्स ग्राउंड के 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, 1000 तक पहुँचाइए। IPL भी चल रहा है और एग्जाम ग्राउंड्स ने पहला सेंचुरी मार दिया है, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, लेट्स गो ऑन। तो क्वेश्चन 23, व्हाट इज द पार्टिकल X इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, तो 4 बेरिलियम 9 + 2 He4 6 कार्बन 12 एंड X की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर,
तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो ये आपका 4 एटॉमिक नंबर है, तो 4 + 2 6, तो एटॉमिक नंबर यहाँ मैच हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोई झंझट नहीं है। एटॉमिक मास 9 + 4 13 हुआ, यहाँ पर 12 है, तो बचेगा क्या 1, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 124, द पार्टिकल्स हैवियर देन न्यूक्लियंस आर कॉल्ड, इट इज हाइपरॉन्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 125, मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर H/m0c 1 - cos phi, तो यहाँ पे जो cos phi की वैल्यू 180 कर देंगे तो नेगेटिव -1 वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अदरवाइज इसका जो वैल्यू होता है ये आपका होता है बस H/m0c की वैल्यू होता है 0.024 एंगस्ट्रॉम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.0486 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपका इस तरह से पेपर 2 भी सॉल्व हो गया। कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है, आई विल पुट करेक्ट आंसर्स इन द पिन्ड मैसेज। ओके गाइज, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग कट ऑफ के लिए भी बोल रहे हैं, आल्दो मैं कट ऑफ बिल्कुल देना नहीं चाह रहा था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इट मे बी अराउंड 450 फॉर EWS OBC एंड जनरल, एंड फॉर SC ST 400, जो भी है होप फॉर बेस्ट यही कहूँगा। ठीक है, जो भी आ रहा है जितना भी आ रहा है चिंता की कोई बात नहीं है, नंबर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर नंबर्स कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम्स होते रहेंगे एंड एग्ज़ाम्स ग्राउंड भी आपके साथ बना रहेगा, तो सपोर्ट करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।